کے لیے دینی پڑے گی فیس۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کاروباری افراد کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اب کوڑا اٹھانے کے لیے کاروباری حضرات سے فیس وصول کرے گی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC کاشف آوان کا کہنا تھا کہ شروع میں صرف کاروباری افراد کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد کمپنی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ جی، بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، سسٹینیبلٹی، سیلف سسٹینیبل ہونے جا رہی ہے۔ اس میں ہم نے سب سے فرسٹ پہ جو سٹیپ لیا ہے وہ ہمارے جو کمرشل اینٹیز ہیں، جو بڑی اینٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہم کانٹریکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم ان کو بہتر ماحول بھی دیں گے، صفائی بھی دیں گے۔ کاشف آوان کا مزید کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ اس طریقہ کار کو پھیلایا جائے گا۔ کمپنی بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، بلکہ ان کے جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن رہیں گے۔ اگر ان کے مسائل ہیں ان کے گلی محلوں میں بھی، ان کی رہائشوں میں بھی، تو وہ بھی ہم حل کریں گے انشاءاللہ، صفائی کے جتنے بھی مسائل ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو کاروباری حلقے ہیں ان کی طرف سے ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ یوزر فیس دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم ان کو بہتر سے بہتر سروسز بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو جاری بھی رکھیں۔ کمپنی حکام کا موقف ہے کہ سروس فیس کی وصولی سے خطیر آمدن حاصل ہوگی۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ DHQ اسپتال جھنگ میں بہتر علاج معالجے کی امید پیدا ہوگی۔ گورنر پنجاب نے ٹراما سینٹر کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ DHQ اسپتال کے ٹراما سینٹر کو لگ بھگ 15 کروڑ روپے سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ نئی مشینری فراہم کی جائے گی، عمارت کی تنظیم و آرائش بھی ہوگی۔ اپ گریڈیشن کے بعد شہریوں کو علاج معالجہ کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ ٹراما سینٹر میں جدید لیب بنائی جائے گی جہاں ہر قسم کی ٹیسٹ مفت کیے جا سکیں گے۔ ٹراما سینٹر میں ریڈیالوجسٹ اور نیورو سرجری کا بھی شعبہ بنایا جائے گا اور جدید مشینری بھی خریدی جائے گی۔ ٹراما سینٹر میں بلڈ بینک کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 1.5 سال کے دوران ٹراما سینٹر کو اپ گریڈ کیا جائے گا، جس کے بعد شہریوں کی مشکلات کم ہوں گی۔ ایک لیٹسٹ ٹراما سینٹر اسٹیبلش ہونے سے ہمارے جو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک وہاں پہ ایک ہمارا بلڈ بینک جو ہے وہ لیٹسٹ بن جائیں گے، لیبز، OT، یہ ساری فیسلٹیز جو جب وہاں پہ اویلیبل ہوں گی تو ہمارے لوگ جو الائڈ ریفر کرنے پڑتے ہیں یا لوگوں کو غیر ضروری سفر کرنا پڑتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور ہماری بیڈ اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اپ گریڈیشن کی منظوری کو شہریوں نے خوشائن قرار دیا اور کہا کہ علاج معالجہ کے لیے دوسرے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، City 41، جھنگ۔ شوگر اور آٹا مافیا کے خلاف حکومت کا بڑا فیصلہ۔ درآمدی چینی کی 90 روپے فی کلو کی قیمت پر عام دکانوں پر ہوگی دستیابی۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ اجلاس میں صنعت، زراعت، خوراک کے سیکرٹریز، ایڈیشنل IG سیشن برانچ، گین کمشنر اور متعلقہ افسران نے شرکت کی، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ فیصل آباد سے کمشنر محمد زاہد حسین اور ڈپٹی کمشنر علی شہزاد ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، دستیابی اور پرائس مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد بڑھا دی جائے گی، جبکہ صوبائی وزیر نے سہولت بازاروں، ماڈل بازاروں میں چینی کی ترسیل کا مؤثر میکانزم بنانے کی ہدایت کی۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ درآمد شدہ چینی کا فائدہ ہر صورت عام صارف کو ملنا چاہیے۔ درآمدی چینی کی کمرشل استعمال کے لیے فروخت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ چیف سیکرٹری نے تمام اضلاع میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی 1100 روپے میں دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی مقررہ سے زائد قیمتوں پر فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے انتظامیہ اور پولیس آٹا اور چینی کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھے۔ چیف سیکرٹری نے کرپشن میں ملوث مارکیٹ کمیٹیوں کے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں برائلر مرغی کی اونچی اڑان، قیمتوں کو پر لگ گئے، غریب کی پہنچ سے باہر۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برائلر مرغی کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے، ایک دن میں 22 روپے جبکہ ایک ہفتے کے دوران 61 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ چیئرمین برائلر ایسوسی ایشن اظہر رہنداوا کہتے ہیں فیڈ اور پیداواری لاگت مہنگی ہونے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 50% تک فارمرز کاروبار چھوڑ چکے، سپلائی کم ہونے سے قیمت بڑھنا فطری ہے، آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فارمنگ بالکل ختم ہو رہی ہے، اس وقت 50% جو کنٹرول شیڈز ہیں وہ بند پڑے ہیں، اس کی ریزن ہے مہنگائی، الیکٹریسٹی بہت مہنگی ہے، فیڈ مہنگی ہے، چوزا مہنگا ہے، ویجز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ایکسپینس بہت زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے جب بھی فارمر پلیس کرتا ہے اسے لاس ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ایک دفعہ لاس ہو جاتا ہے وہ ایک سال بعد میں پلیسنگ کرتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس وقت
मेरा ख्याल ऑन एवरेज 50% शेड बंद पड़े हैं। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर हैदर अली ने भी मामले को डिमांड और सप्लाई से मशरूत कर दिया। कहते हैं महंगाई की वजह से पैदावारी लागत बढ़ी है। इसका परमानेंट हल यही है फिलहाल कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे फार्मर को, उसको बिजली के बिलों में कोई इंसेंटिव दे, उसको चूजे में कोई सब्सिडी दे, उसको फीड में दे, उसको एक्सपेंस में दे, ताकि फार्मर को सपोर्ट करे और वो सारे 100% जो फार्म है उनमें प्लेसिंग हो और उनकी जब सप्लाई आएगी फिर ये रेट कम होगा। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल ये कम होगा। शहरियों ने ब्रायलर मुर्गी की कीमतों को मुस्तहकम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को हुकूमत की जानिब से बिजली का एक और जोरदार झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.95 बढ़ा दी गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से महंगाई की सताई अवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया गया। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.95 इजाफा कर दिया गया, जिस पर शहरियों ने शदीद परेशानी का इजहार किया। शहरी कहते हैं तनख्वाहदार तबका घर चलाए या बिजली के बिल अदा करे, हुकूमत क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। बिजली वाले ने बहुत तंग किया है हुकूमत ने, इन्नी की बिजली महंगी कर छड़ी है कि गरीब आदमी जो किराए का मकानदार है उन्हें की करेगा, किराए का मकान तो किराया देगा या बिजली का बिल देगा। आटा साढ़ा ਉਂਝ मुक्का 10,000 रुपया बिल आ गया, बिल दइए कि रोटी खाइए ही। शहरी कहते हैं आटा, चीनी, घी हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमत ने गरीब का जीना भी मुश्किल कर दिया है। गरीब के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। आवाम ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। शहरियों ने बिजली महंगी होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी किया। बिजली की कीमतों में हफ्ते में दूसरी बार इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद की जा रही है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई की मारी अवाम को बिजली का एक और झटका। एक हफ्ते में बिजली दूसरी बार महंगी हुई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। नेपरा ने रवां हफ्ते बिजली की कीमत में दूसरी बार इजाफा करते हुए यूनिट मजीद ₹1.95 महंगा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। शहरियों का कहना है कि कमर तोड़ महंगाई ने घरों में चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। बिल मेरा 8,712 रुपये था, मुझसे नहीं अदा हो सका कि मैं बिल जमा कराऊं, अपने बच्चों की फीसें दूं, मैं दिख अखराजात करूं। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। जो बिल पहले 3,000 का आता था, एक फैन जो एक पंखा चलता था, अब वो 8 से 10,000 का बिल आ रहा है। जो कमर्शियल बिल बिजली के रेट्स हैं वो इंतहाई ज्यादा कर दिए गए हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई नहीं बल्कि गरीब को खत्म करना चाहती है। टोबा के शहरी बोले हुकूमत ने पेट्रोल के बाद बिजली का इस्तेमाल भी महंगा कर दिया है। ताजर बरादरी का कहना है कि दिन में दुकानों पर काम करके पसीना बहाते हैं, जबकि बिल आने पर अपना खून जलाते हैं। बिजली का बिल आ रही है कि बस हुण बच्चों वास्ते फीस आ रही है, फीस भी देनी हुंदी है, फिर घर खर्चा भी देना हुंदा वा। घ्यो चीनी इन्नी महंगी है तो पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया जी। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। बिजली का बिल कम होना चाहिए जी ताकि गरीब आवाम को फायदा हो सके। पहले बिजली का बिल था 1 माह बाद या 6 माह बाद कहीं रेट ज़्यादा कर देते थे, अब ये तो हफ्ते में 2-2 बार कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते 2 रुपए ज़्यादा किए थे, अभी इस वक्त फिर ज़्यादा कर दिए हैं। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेते हुए हुकूमत से गरीब आदमी के लिए रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। मरम्मत कब तक चलेगी? चिन्योट में आए रोज मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मजीद इस बारे जानिए इस रिपोर्ट में। चिन्योट में फैस्को अफसरान की लापरवाही ने सार्फिन को परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है कि आए रोज मेंटेनेंस और तारों की मुरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद रखना मामूल बन गया है। कल भी सुबह से लेकर शाम तक बत्ती इंतजार करते रहे, फुट की मशीन चलाते हैं, फिर जुम्मा पड़ेगी ऐसे शायद उसके बाद आई बत्ती कोई नहीं आई। मस्जिद भी गए, उत्थे भी पानी की बड़ी आवाजारी हुई है, बत्ती तो बगैर ही जो जुम्मा पढ़ना पाया सानू। परेशानी काफ़ी होती है कि मजदूर बेचारे दिहाड़ी करने जाते हैं, बिजली नहीं होती, दिहाड़ी टूट गई, मिस्त्री की दिहाड़ी टूट गई, मजदूर की दिहाड़ी टूट गई, फिर उसके बाद कई कारोबार ठप हो गए। बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस अंदरून शहर की ताजर तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि मुरम्मत के नाम पर हर चौथे रोज बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली की बंदिश से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब फैस्को हुकाम का कहना है कि तारों की मुरम्मत और फनी खराबी के पेश नजर बिजली बंद की जाती है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। महंगाई की सुनामी के सामने झंग के शहरी बेबसी का शिकार।
जंग में एलपीजी की कीमतों में हालिया इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था एलपीजी की कीमतों में इजाफे से जीना दोभर हो गया। एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। रिक्शा चलाते हैं, चला चला के शाम तक हमारी बास हो जाती है वैसे भी। और अब जब हम जाते हैं एलपी पर गैस भरवाने के लिए तो हमारे पास कोई यानी कि वो इतना ज़्यादा यानी कि कीमत में इजाफा होता जा रहा है कि गरीब आदमी अब खुदकशी करने पर मजबूर हो गई है। बिजली महंगी होने पर भी जंग के शहरी हुकूमत से नाला है। कीमतों में इजाफे को मजीद माली बोझ करार दे दिया। मुतवस्सित तबके के शहरियों को बजट आउट होने का अंदेशा पैदा हो गया। अगे भी बिजली महंगी होगी जनाब, गरीब आदमी है बिल्कुल तो भरी और मजीद आती फिर महंगी होगी है। सानू साड़ी अपील है हुकूमत से कि मेहरबानी करे गरीबों से हाल तो कोई रहम किया जाए। इस कदर बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, हम गरीब आवाम कैसे पे करें। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का फराहमी का मुतालबा किया है। जंग में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई, जिन्हें डीएचक्यू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया। मुतासर होने वाले अफराद में काशिफ और अहमद शामिल हैं, जबकि इससे कबल आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज 2 अफराद को नाजुक हालत के पेश नज़र अलाइड हस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि डीएचक्यू अस्पताल चनियोट में डॉक्टरों की मुबैना गफलत एक और जान निकल गई। 13 साला मोहम्मद अमान मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी के वालिद का कहना है कि डॉक्टर की जानिब से दी गई ओवरडोज मौत का सबब बनी। अब आपको बताएं कि 500 स्ट्रीट लाइट्स 5 करोड़ रुपए की और वो भी खराब। गैर मियारी लाइट्स की खरीदारी में करप्शन का इंकशाफ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपैलिटी डेवलपमेंट फंड्स को इस्तेमाल करके झंग के लिए स्ट्रीट लाइट्स चंद माह कबल खरीदी गईं, जिसका मकसद शहर को जगमग करना था, लेकिन लाइट्स कुछ दिनों बाद ही खराब हो गईं। 500 लाइट्स में से 40% खराब हैं। शाम होते ही शहर अंधेरे में डूब जाता है, जिससे शहरी हादसात का भी शिकार होते हैं। रोज एक आधा एक्सीडेंट होता है। कल एक बच्चा गटर में गिरा, हमने उसको बड़ा औखा निकाला है। अपील हमारी डीसी साहब से यही है, लाइटें ऑन करवा। हम अक्सर रोड पे जाते हैं तो अक्सर सारी लाइटें बंद रहती हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है और भी काफ़ी मसाइल हैं। हम म्यूनिसिपल कमेटी और डीसी से अपील करते हैं कि लाइटें ठीक करवाएं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ज़राए के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स गैर मियारी थी और उसमें करप्शन भी की गई, जिस पर एक्सियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंपनी को खत लिख दिया। दूसरी जानिब ठेकेदार की बकिया रकम की अदायगी भी रोक दी गई, जो 40 लाख रुपए के करीब बनती है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया ने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया और कहा लाइट्स लगाई जाएंगी तो अदायगी होगी। वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से हमारी जो लाइटिंग ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रीट लाइट्स लग गई थी, उनमें शिकायत थी कि 150 के करीब जो लाइट्स हैं वो ख़राब हैं। तो उनको मैंने डायरेक्शन जारी कर दी है कि नेक्स्ट विज़िट मेरा फील्ड में विज़िट होगा, तब तक या तो इनको रिप्लेस कर दें। वैसे उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी है कि अगर वो 1 साल के अंदर जितनी भी लाइट्स ख़राब होंगी तो कंपनी वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं लगा के दे रहे हैं उनको रिप्लेस करने के पाबंद होंगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि गैर मियारी लाइट्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ मुकामात पर लगी खराब लाइट्स को फौरी तौर पर चालू किया जाए, जबकि करप्शन में मुलव्वस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। तहसील 18 हज़ारी का बड़ा सरकारी अस्पताल वसाइल की कमी का शिकार। ये कोई कचरा मंडी के मनाजर नहीं, बल्कि तहसील 18 हज़ारी के THQ अस्पताल वासु आस्ताना के पार्किंग एरिया से मुल्हिका प्लॉट है, जहां कूड़ा क्रिकेट ढेर लग गए लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। अस्पताल की इस्तेमाल शुदा सरिंजें और दीगर बाकियात खुले आसमान तले फेंकी जाती हैं, जिससे बदबू और ताफुन के साथ साथ बीमारियां भी फैल रही हैं, मगर हुक्काम तमाम तर सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। साफ सुथराई की नाकिस सूरत हाल की बड़ी वजह सफाई अमला की किल्लत है। ज़राए के मुताबिक 40 से ज़ायद प्राइवेट मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न होने से नौकरी छोड़ गए, जबकि इन मुलाजमीन को 4 माह की तनख्वाहें भी नहीं मिल सकी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद जोया से मामले पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है, ताकि अस्पताल में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अबू तराब तराबी, सिटी 41 18 हज़ारी झंग। फैसलाबाद में वासा की लापरवाही ने शमसाबाद के रिहायशियों का जीना मुश्किल कर दिया। इलाके में सीवरेज के पानी के तालाब बीमारियां बांटने लगे। मकीन वासा हुक्काम और मकामी MNA के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कमालिया के मोहल्ला कुतुबपुरा में सीवरेज के नाकिस इंतजाम।
मालिया के मोहल्ला कुतुबपुरा में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया, जिससे गटरों का गंदा पानी गलियों में जमा रहने लगा। शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं गंदा पानी घरों में दाखिल होकर बुनियादों को खोखला कर रहा है। मसाजिद में नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते। हमारी जो नमाज है वो उस वक्त काबिल कबूल होगी जब हमारा जिस्म भी पाक होगा, लिबास भी पाक होगा, वो जगह भी पाक होगी। जब हम यहाँ से गुजर के मस्जिद में जाएंगे तो हमारे वो नमाज पढ़ने कोई फायदा नहीं है। तो आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि इसका बंदोबस्त कीजिए। इलाका मकीन कहते हैं गंदे पानी से बदबूदार माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। मौजी अमराज भी फैलने का खदशा है। बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। माएँ बहनें गंदे पानी से गुजरती हैं। हुकूमती नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर अफसोस होता है। ये जो पानी लाता है, ये पानी ने उन पैपों को गाल दिया है। वो पैप जो है वो गल चुके हैं। उसमें कोई बच्चा हाथ लगाता है तो टूट जाता है, उसमें कोई मोटरसाइकिल लगता है तो टूट जाता है। तो मेहरबानी करके इसका कोई हाल करें, हम तो बहुत परेशान हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सुपरवाइजर बात नहीं सुनता और मुबैना तौर पर धमकियां दी जाती हैं। मकीनों ने बाला हुकाम से फौरी मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के हमरा रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। आईजी पंजाब फैसलाबाद आए मगर डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह करना भूल गए। आईजी पंजाब के दौरा फैसलाबाद के बाद भी डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर फाल न हो सका। डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर की नई बिल्डिंग 8 माह कबल तैयार की गई थी। आईजी पंजाब फैसलाबाद में मसरूफियत की वजह से इफ्तिताह न कर सके। डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर इस वक्त पुलिस लाइन में आर्जी तौर पर कायम है। आर्जी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग खस्ता हाल और दीगर इंतजामात भी बेहतर नहीं है। नई बिल्डिंग में मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए बेसमेंट भी बनाई गई है। मौजूदा आर्जी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में डॉल्फिन फोर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक चंद रोज में डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर नई बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से तैयार करदा डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर की बिल्डिंग 8 माह से फाल होने की मुंतजिर है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। डीपीओ राना उमर फारूक ने लाहौर तबादला होने के बाद अपने दफ्तर में अलविदाई मुलाकातें की। एमपीए सईद अहमद सईदी, राना शफीक और तहरीक इंसाफ के दीगर ओहदेदारान राना उमर फारूक से मुलाकात करने पहुंचे। एमपीए ने फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। आज हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारी तमाम तंजीम उनके साथ हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं, हम डीपीओ साहब को जो हमारी लास्ट बतौर डीपीओ टोबा टेक सिंह मुलाकात करने इस वास्ते आए हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा टाइम हमारे साथ गुजारा। टोबा टेक सिंह को बहुत अच्छा सर्व किया, नहायत ईमानदार और पूरी जद्दोजहद के साथ इन्होंने वक़्त दिया टोबा टेक सिंह में। डीसी ऑफिस में भी डीपीओ के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां जिले के आला अफसरान ने डीपीओ को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर राना उमर फारूक का कहना था कि टोबा की सियासी शख्सियात और अवाम ने बहुत इज्जत दी। मुझे खुशी है कि जिले को क्राइम फ्री करने में किरदार अदा किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने इंतहाई बाइज़्ज़त तरीके से मुझे यहाँ पर वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाई और आज मेरा आखिरी दिन है और यहाँ पर आपने देखा है कि खूबसूरत लोगों का गुलदस्ता यहाँ पर मौजूद है, जिसमें सियासी हमायदीन भी मौजूद हैं। जनाब सईद अहमद सईदी साहब एमपी और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर वहीद अकबर, उनके दीगर काबरीन भी साथ आए हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए आए हैं और मैं बड़ा पुरमसरत फील कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैं ख़ास कर इनका मशकूर इसलिए ज़्यादा हूँ कि सेफ सिटी पीर महल को जो विजन इन्होंने दिया था, इन्होंने एक हमें तजवीज़ दी थी और इन्हीं की वजह से आज सेफ सिटी पीर महल कंप्लीट हुआ है। राना शफीक का कहना था कि डीपीओ उमर फारूक ने जिले में अमन व अमान कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ तैयब सैफ, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में 16 अक्टूबर को धोबी घाट ग्राउंड में पीडीएम का जलसा। कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि पीडीएम मरहला वार आगे बढ़ रही है, अवाम के साथ इज़हारे यकजहती के लिए जलसे का इनेकाद कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद करते हुए कहा, इस तरीके से इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसा हो भी नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हुआ ऐसे। इस किस्म के जो मामलात हैं वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाए जाते हैं और उसके बाद फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ा जाता है। ये किसी मुल्क, किसी दुनिया में नहीं हुआ, किसी मुल्क में नहीं हुआ कि आप इलेक्शन उठाएं और उठा के जो है वो ईवीएम में स्पुर्द कर दें। तो बाकी जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है वो जो उन्होंने जो कुछ कर चुके हैं वक्त तक, वो अगली तैयारी करें अपना हिसाब देने की। वो अब महंगाई की फिक्र छोड़ें, वो इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत आएगी
तो लोगों को रिलीफ फराहम करें। मरकजी रहनुमा JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि मईशत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने की बात की गई, लेकिन दर हकीकत स्टेट बैंक, FBR और वजारत खजाना IMF के पास गिरवी है। सेनेटर हफ्ज अब्दुल करीम का कहना था कि चीनी 55 से 110 तक पहुंच गई। अवाम हुकूमत से मुतनफ़र हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम खासकर गरीब सख्त परेशान, और बिजली का बिल जो है वो एटम बम बनकर हर घर पर वो फेंका जाता है और हर महीने उसमें इजाफा किया जाता है। तो अवाम के अंदर इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती है। अवाम तंग आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अवाम अपनी राय का इजहार, अपने गम और गुस्से का इजहार 16 अक्टूबर को धोबी घाट के जलसे में इंशाअल्लाह PDM का जो जलसा है उसमें भरपूर तरीके से अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इस मौका पर नाज़िम आला सियासी अमूर जमीयत अहले हदीस काशिफ नवाज रंधावा, MPF कीर हुसैन डोगर, MP मेहर अहमद रशीद, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, ज़िलाई सदर नून लीग मियां कासिम फारूक, टिकट होल्डर इसरार अहमद मुन्ने खान, सिटी सदर शेख एजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां अजमल, डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, MP राना अली बास खान, आतिफ कसाना और राना वारिस हुसैन भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद के हल्का PP 112 और PP 113 में नून लीग के ओहदेदारान में तंजीम साजी के हवाले से नोटिफिकेशन की तकसीम नायब सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने की। पीर महल के नवाही चक 324 काफले में सुई गैस का संगे बुनियाद रख दिया गया। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ रियाज फतेहाना ने इफ्तिताह किया। इरफानुल हसन चौधरी और डॉक्टर कशफ रियाज भी हमरा थे। रचना टाउन और यूनिस टाउन में सीवरेज के मसाइल का होगा मुकम्मल खात्मा। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद ने सत्याना रोड पर वाकई रचना टाउन और यूनिस टाउन का दौरा किया। सूरत हाल का जायजा लेकर अवामी अपील पर सीवरेज लाइनों की सफाई का फैसला किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अक्सर बताता रहता हूं कि हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसी इलाके में कुछ अर्सा पहले भी हम आए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल आपका कैमरे की आंख दिखाएगी गलियों के हालात। ये लोग, इन दोस्तों ने हमें शुक्रिया अदा हमारे करने के लिए हमें बुलवाया है यहाँ पर, तो मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें अपनी कंप्लेंट से आगाह करते हैं और रैपिडली हम इनका काम भी करते हैं। वाइस चेयरमैन शेख शाहिद जावेद ने बताया कि मानसून के दौरान क्विक रिस्पांस से इलाके को रिलीफ दिया गया था। वकीलों ने बरसात में बर वक्त रिस्पांस पर वाइस चेयरमैन का शुक्रिया भी अदा किया। ऐसे है कि क्योंकि ये जो 3 मंथ्स होते हैं ये हमारे डिसिल्टिंग के मंथ होते हैं और हमने ये बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की एक डिसिल्टिंग शेड्यूल बना लिया हुआ है। सितंबर में हमने जो इलाके थे कवर कर लिए हैं, जो कुछ इलाके रह गए हैं वो हम अक्टूबर में और नवंबर में डिसिल्टिंग करेंगे और इंशाल्लाह जो आने वाला मानसून होगा वो वासा की हिस्ट्री का सबसे अच्छा मानसून होगा, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी ऑन गोइंग होंगे और हमारी जो कंप्लेंट्स हैं लाइंस की वो भी इंशाल्लाह हल होंगी सेंटर लाइन की। शेख शाहिद जावेद ने कहा कि सीवरेज मिसाइल के मुकम्मल खात्मे के लिए इस सीजन में मुकम्मल डिसिल्टिंग की जाएगी। सीवरेज लाइनों की सफाई का फैसला तो किया गया है, मगर अब देखना यह है कि इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होता है और शहरियों को किस हद तक रिलीफ फराहम किया जाता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ज़हनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से सेंट्रल जेल फैसलाबाद में तकरीब, जेल अफसरान, एहलकार और कैदियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेशावर भिखारियों की हौसला शिकनी के लिए टोबा टेक्सिंग में आगाही व इनेकाद। टोबा टेक्सिंग में पेशावर भिखारियों के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहर्रक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में महकमा सोशल वेलफेयर, NGO सेक्टर और रेस्क्यू की आगाही रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चौक से लेकर शहबाज चौक तक निकाली गई। शुरा ने गदागरी के खिलाफ पम्फलेट्स भी तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर का कहना था गदागरी की लानत को खत्म करेंगे, मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। इस वॉक का इनेकाद इसलिए किया गया है कि गिदागरी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि जो गिदागरी होता है इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद अदर सोशल इवल्स, जिसके अंदर चाइल्ड लेबर है, मॉलेस्टेशन है और इस तरह की दीगर माशरती बुराइयां जो हैं इससे वाबस्ता है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था टोबा तहसील में खुसूसी टीमें सोशल वेलफेयर का कहना था कि भिखारी शहरियों को तंग करते हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज एंटी बैगरी कैंपेन के हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक कैंपेन का वाक का एहतमाम किया गया है।
جس میں سول ڈیفینس 112 NGOs اور پبلک کے نمائندوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گداگری کا مافیا ہے اس کا کلا کما کیا جائے۔ ریلی میں شریک خواتین کا کہنا تھا ہمیں بھیک دینے کی بجائے بھکاریوں کو کام کرنے کی ترغیب دینا ہوگی، اگر ہم ان کو بھیک دیتے رہے تو برائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ گداگری ایک لعنت ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ تمام لوگ اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے آج توبہ ٹیکسنگ کی سڑکوں پر ہیں۔ کیمرہ مین جواد ملک کے ساتھ طیب سیف، توبہ ٹیکسنگ۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے 11 اکتوبر سے سکولز میں 100% حاضری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سکولز میں معمول کے مطابق مارننگ اسمبلی، بزم ادب اور تفریح ہوا کرے گی۔ سپورٹس سرگرمیاں کروانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز، فیصل آباد ڈویژن میں سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورنمنٹ ہائی اسکول چنیوٹ میں تحصیل لیول پر حسن قرت اور نعت خوانی کے مقابلے منعقد ہوئے۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام اسکول اور کالجز کے طالب علموں نے حصہ لیا۔ تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی، جبکہ مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ 18 ہزاری میں بھی شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 روزہ تقریبات جاری۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے تحصیل بھر کے اسکولوں کے درمیان تقریری مقابلے کروائے گئے۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چاندہ کے علی رضا نے پہلی، گورنمنٹ پرائمری اسکول حق باہو کالونی کے طالب علم نور خان نے دوسری، جبکہ وساوا ایلیمنٹری اسکول کے طالب علم کیس رضا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہر طرف خوشی کا سما۔ گروپ لیڈر فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا سکندر اعظم خان کی جانب سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ رانا سکندر اعظم نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ شور کوٹ میں بھی ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ میونسپل کمیٹی ہال میں بچوں کے درمیان حسن قرت کے مقابلے کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں اسکول اور کالجز کے بچے شریک تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس نے کہا کہ جیتنے والے بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، جبکہ 12 ربیع الاول کو بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ عشرہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہال میں ضلعی لیول کے حسن قرات مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام عشرہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اسکولوں کے ضلعی لیول کے حسن قرات مقابلے منعقد ہوئے، جس میں تحصیلوں کے پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات نے شرکت کی اور خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ MPA فردوس رائے اور CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کا کہنا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مبارک مہینہ کی مناسبت سے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں طلباء بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تو ہمیں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، ہماری ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے سکولز کے اندر اس ہستی کے لیے ایک ہفتہ منائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پر ایک ایسی اسکیجول دیا گیا جس میں ہمارے بچے حسن قرت میں، نعت میں، سپیچز میں کمپٹیشن لے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر سکول کے اندر میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا پہلا فریضہ مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ کلمے کے بعد ہمیں نماز کو تھامنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے ہماری زندگی میں ایک ترتیب لاتی ہے۔ آپ کوشش کریں، میری بچیاں، میرے اسٹوڈنٹ جو بچے بیٹھے ہیں، وہ نماز کو اپنا شعار بنائیں۔ اس کے بعد زندگی کے عام